So hello everyone. Today we are talking about introduction to JavaScript. So in this video we will cover introduction to JavaScript, how JavaScript work, what is JavaScript. We will learn everything about the JavaScript and how we can use JavaScript in your HTML. So before starting this topic, first you need to required HTML and CSS. तो आपको HTML CSS पहले से आनी चाहिए. बिना HTML CSS के आप अगर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम है, बट अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छा है. देन हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट. सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, क्या क्या टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे. फर्स्ट वी विल कवर इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर दैट वी विल कवर हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट इन योर HTML. Third, we will cover variable and constant, how to create variables, how to create constants. Then we will learn about the operators, keywords, comments. Then we will learn about JavaScript data types, how many data types are there in JavaScript. And after that, we will learn JavaScript functions. And at last, we will learn use of the functions. Okay. So start करते हैं. First, the introduction of the JavaScript. What is JavaScript? The basic question, what is JavaScript? So the simple introduction is JavaScript is a lightweight cross-platform single-threaded and interpreted compiled programming language. It also known as the scripting language for web pages. So JavaScript क्या है? एक lightweighted, it's very lightweight and it's a cross-platform. You can use on device or any device like mobile, desktop, iPad, multiple device. So it's a cross platform language. And third one is single threaded. JavaScript जो हमारी है वो एक single threaded language है. And the interpreted compiled means JavaScript जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है? कोड को कंपाइल करना होता है. सो कंपाइल का मीन्स होता है वो नॉर्मल कोड को जो कंपाइलर होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, देन बाइट कोड को इंटरप्रेटर जो है वो रन करता है. सो यहाँ पर क्या होता है, हमें बाइट कोड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटरप्रेट करता है जावास्क्रिप्ट को. सो इट्स अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट ऑल्सो नोन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस. ओके. Then we will discuss about it is well known for the development of the web pages. You already know we can create multiple web pages with the help of JavaScript. And many non-browser environment also use it, like Node.js. So it's a non-browser environment. So JavaScript is a weakly typed language. Weakly type means dynamically typed. You don't need to specify the data type, especially like if you are using C or C++, you need to specify the data type. Like if you are using string, then you have to specify that you are using the string data type. So here you don't need to specify specifically data type. Okay. Then JavaScript can be used for client side development and as well as server side development. So client side और server side का आपको concept पता ही होगा. client side जो client use करता है, server side मतलब जो back end होता है. तो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में मेनली क्या डिफरेंस होता है. क्लाइंट साइड का मीन्स अभी आप ये समझ लीजिए कि क्लाइंट साइड मीन्स आपको क्लाइंट साइड यूज करना है. सर्वर साइड मीन्स जो सर्वर पे बैकएंड हम कोड लिखते हैं, जहां पर हम एपीआईज बनाते हैं, अपना सारा लॉजिक रखते हैं, वो सारा सर्वर साइड होता है. क्लाइंट साइड बेसिकली ब्राउजर साइड होता है. ओके. एंड जावास्क्रिप्ट बोथ एन इम्परेटिव एंड डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ द लैंग्वेज. सो आप इसमें imperative और declarative दोनों यूज कर सकते हो. Then JavaScript contain a standard library objects like arrays, dates and mass and core set of the language elements like operators, control structures and statements. Okay. So JavaScript हमें basically एक idea हो गया कि JavaScript क्या है. lightweighted cross platform language है. ठीक है, हम उसको multiple platforms में यूज कर सकते हैं और single threaded है, मतलब इसमें एक ही थ्रेड होता है जो सारा काम करता है. अब हम आपको ये भी बताएंगे कि हाउ वी कैन यूज मल्टीपल टास्क विद द हेल्प ऑफ सिंगल थ्रेड ओनली. जावास्क्रिप्ट कैसे हैंडल करता है मल्टीपल टास्क को सिंगल थ्रेड होते हुए भी. देन हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट कब क्रिएट करी गई थी. तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. तो जावास्क्रिप्ट जो क्रिएटेड करी गई थी वो कही थी ब्रेंडन इच नाम से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे नेटस्केप में. 1995 में उसको डेवलप करा था. सो इट वाज क्रिएटेड 1995 बाय ब्रेंडन इच.
while he was engineered at Netscape, it was globally going to be named LiveScript. So before the name of JavaScript, the previous name of the JavaScript was LiveScript, okay, but was renamed. Unlikely the most programming language, JavaScript has no concept of input and output. इसमें कोई IO का मतलब कंसेप्ट नहीं होता. इट इज डिजाइन टू रन एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन अ होस्ट एनवायरनमेंट. ये एक सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप किसी भी होस्ट एनवायरनमेंट में इसको रन कर सकते हो. ओके, सो दीज आर द बेसिक हिस्ट्री. मैं पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जस्ट सिंपल सा एक ओवरव्यू दिया हिस्ट्री का कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट. एंड अब जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज होने लगी है. पहले ये सिर्फ क्लाइंट साइड यूज होती थी, बट अब ये सर्वर साइड भी यूज होती है. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाउ टू एड जावास्क्रिप्ट इन योर HTML. तो आपने HTML पढ़ा ही होगा. तो HTML समझने के लिए पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर एक जस्ट सिंपल सी index.html फाइल बनाते हैं और इसको VS कोड में हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं. तो ये VS कोड में ओपन हो चुकी है, ठीक है. अगर आप इस पर देखोगे तो अभी सिंपल सी एक फाइल है जिसपे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है. मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ. ओके, तो ये सिंपल सी एक फाइल है जिसपे हेलो वर्ल्ड लिखा है. तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं सिंपली कि ये कैसा दिखता है. तो इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक सर्वर पे रन कर लेते हैं पोर्ट नंबर 55 पे. ओके, तो हम गो लाइव करते हैं. तो ये हमारा प्रोग्राम चल चुका है, हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया हमारे पास, ठीक है. अब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ टू एड जावास्क्रिप्ट इन योर HTML. सो वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट इज इंटरनल JS एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल JS. तो जिस तरीके से आप CSS आपने पढ़ा होगा, CSS आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों यूज कर सकते हैं. सेम उसी तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं. सो इंटरनल, हाउ वी कैन यूज इंटरनल जावास्क्रिप्ट, यू नीड टू यूज ओनली स्क्रिप्ट टैग. जैसे आप HTML में आपने बहुत सारे टैग पढ़े हैं, बॉडी टैग, हेड टैग. ओके, इसी तरीके से एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग. सपोज मैं यहाँ पर एक टैग क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ स्क्रिप्ट टैग. ओके, तो स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज. जैसे नॉर्मल टैग होता है उसी तरीके से स्क्रिप्ट टैग होता है. और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज हम लिखते हैं console.log और यहाँ पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड. ओके, सो ये लिखते ही अगर हम ब्राउजर में जाएंगे, अपने ब्राउजर में जहां हमने ये रन कर रखा है, और हम इंस्पेक्ट करेंगे. इंस्पेक्ट करने के बाद अगर हम कंसोल में जाएंगे तो हमें क्या लिखा दिखेगा, हेलो वर्ल्ड. सो हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा आ रहा है कंसोल में, अगर आप देखोगे तो कंसोल में हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर सिंपल सा एक कंसोल यूज करा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, इसलिए कंसोल हमारा प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे. ये तो हो गया इंटरनल जावास्क्रिप्ट. अब एक्सटर्नल कैसे है, एक्सटर्नल के लिए सेम जैसे आप CSS में करते हैं, आपको एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ेगी. सपोज द नेम ऑफ द फाइल इज script.js. okay, and inside that we are writing console.log and we are writing something here like inside script. okay, inside script. सो इसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा लिंक टैग होता है CSS इंक्लूड करने के लिए, सेम उसी तरीके से हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू भी एक्सटर्नल CSS को लोड कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट. ओके, एंड इनसाइड स्क्रिप्ट वी विल राइट src मीन्स सोर्स. ओके, सोर्स ऑफ द फाइल. हियर वी नीड टू स्पेसिफाई द सोर्स. द सोर्स ऑफ द फाइल इज द सेम फोल्डर एंड script.js. this is the path of the file. And if we reload it again, then you can see we have two logs here. First is hello world, second one is inside script. okay, so hello world यहाँ से आ रहा है और inside script मतलब स्क्रिप्ट के अंदर जो हमने कोड लिखा था, कंसोल करा था, वो यहाँ पर आ रहा है. ओके, तो हमारे पास दो मेथड हैं इनको लोड कराने के लिए. अब एक्सटर्नल को भी आप बहुत सारे वे में लोड करा सकते हो, एसिंक्रोनसली, डेफर, बहुत सारे तरीके हमारे पास लोड कराने के. तो हम इस तरीके से लोड करा सकते हैं. सिंपल हमारा सिंटेक्स क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, या फिर आप डायरेक्ट एक्सटर्नल स्क्रिप्ट बना के उसको इंक्लूड भी कर सकते हो. इसके बाद ये जो स्क्रिप्ट टैग है, यू कैन यूज दैट स्क्रिप्ट टैग इनसाइड बॉडी और इनसाइड हेडर. सो आप बॉडी में भी लिख सकते हो, हेडर में भी लिख सकते हो, दोनों में ये स्क्रिप्ट टैग चलेगा. ओके, जैसे मैंने ये हेडर में लिखा और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने पेज पे और
मैं इसको रीलोड करता हूँ अगेन, तो देखो ये आ गया इनसाइड स्क्रिप्ट और हेलो वर्ल्ड, फिर इनसाइड स्क्रिप्ट। ओके, मतलब स्क्रिप्ट जो है वो पहले कॉल हो रही है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, फिर दोबारा वो स्क्रिप्ट कॉल हो रही है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार कॉल कर दी है, इसको हम हटा देते हैं। तो अब हम इसको लोड करते हैं, तो ये एक ही बार हमारी लोड होगी, इनसाइड स्क्रिप्ट और हेलो वर्ल्ड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जस्ट एक सिंपल कंटेनर है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू, इस कंटेनर का नेम, सपोज इसका नेम है माय नेम। ओके, एंड इसके अंदर एक वैल्यू भी स्टोर होती है। ठीक है, इस वैल्यू का मान लो इसमें वैल्यू स्टोर है 25। ओके, सो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल is a simple name of the storage location. This is the name of storage location where data is stored. मतलब यहाँ पर एक स्टोरेज है और स्टोरेज के अंदर इस लोकेशन का नाम क्या है? माई नेम, एंड यहाँ पर जो आपका वैल्यू है वो डेटा है आपकी। ठीक है, सपोज आप किसी एड्रेस पे रहते हो और एड्रेस में आपका नाम रहता है, सपोज मैं दिशांत हूँ और मैं यहाँ पर दिल्ली में रहता हूँ या फिर मैं अपने घर में रहता हूँ, तो मेरे घर का एक एड्रेस होगा। ओके, सो द एड्रेस इज नेम। ओके, सपोज मैं रहता हूँ दिशांत हाउस, एंड कौन रहता है दिशांत हाउस में? दिशांत रहता है। ओके, तो ये आपका पूरा एड्रेस हो गया और उसके अंदर जो रहता है वो उसका वैल्यू होगी। ओके, तो वेरिएबल्स जो है वो 2 टाइप से होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। There are 2 types of variable. First is local variable, second one is global variable. What are local and what are global? Local means the scope of the variable is local and global means the scope of the variable is global. तो ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम आगे ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बहुत अच्छे समझ आया कि what are the local variable and what are the global variable. Okay, इसके बाद हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, इस वाले को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और मैंने सिंपल क्या करा, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सो कैसे वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं? तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम एक कीवर्ड लिखेंगे वैर। ओके, वैर मीन्स वेरिएबल, एंड वेरिएबल का नेम क्या होगा? सपोज वेरिएबल नेम इज एड्रेस। ओके, एंड माई एड्रेस इज Delhi. Okay, what is stored inside the address is Delhi. Okay, second method is creating the variable is let. Okay, suppose let is name is Dishant. Okay, third way of creating variable is const number equal to, so I will use the phone number is equal to, suppose, okay, this is the number. And fourth one is you can say house India. Okay, or you can say country India. सो यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल बनाए हैं। फर्स्ट इज वैर, सेकंड वन इज लेट, एंड थर्ड वन यूज ऑफ कॉन्स्ट, एंड फोर्थ वन इज विदाउट यूजिंग एनी स्पेसिफाइड कीवर्ड। ओके, सो अब हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो अगर मैं एक को कंसोल करता हूँ, सपोज आई कंसोल एड्रेस, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? इफ आई गो टू द स्क्रीन एंड रीलोड इट अगेन, द आउटपुट इज दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस के अंदर क्या स्टोर है? दिल्ली स्टोर है। ओके, एंड सेकंड वन इज नेम, थर्ड वन इज फोन नंबर, फोर्थ वन इज कंट्री। तो सभी को हम इकट्ठे प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर कोमा डाल के, नेम, फोन नंबर एंड कंट्री। ओके, तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सब हम कंसोल करा के देखते हैं एक बार। तो ये हमारे सारे वेरिएबल्स जो हैं कंसोल हो गए हैं। ठीक है, इसको अगर और बेटर वे में देखना है तो कंसोल डॉट टेबल यूज कर सकते हैं और इसके अंदर हम एक एरे बनाकर पास कर सकते हैं। ठीक है,
इससे हमें सारे वेरिएबल बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दिल्ली, दिशांत, फ़ोन नंबर और इंडिया। ओके, तो ये आपके हो गए वेरिएबल्स। अब वेरिएबल वैर क्यों यूज़ करते हैं, लेट क्यों यूज़ करते हैं और कॉन्स्ट क्यों यूज़ करते हैं, सभी के रीज़न होंगे कुछ ना कुछ, ऐसे तो बनाए नहीं है। सपोज अगर हम क्या करें, हम इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं और हम कराते हैं कंसोल डॉट लॉग और सीधा हम लिखते हैं इधर फ़ोन नंबर। ओके, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दिस। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, वेट, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर फ़ोन नंबर इक्वल टू 765432 ओके, ये लिखने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं क्या आता है। तो अगर हम इसको दोबारा से रीलोड करते हैं सेव करने के बाद, ओके, तो यहाँ पर हमें एक एरर आया, क्या है, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर क्यों एरर आया है, ये एरर इसलिए आया है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट नेवर कैन बी चेंज। ओके, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, इफ यू डिक्लेयर वंस यू विल नेवर चेंज इट अगेन। ओके, दिस इज द रूल ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो हमें कांस्टेंट की क्या प्रॉपर्टी पता चली, व्हाट वी नो अबाउट कांस्टेंट, इट नेवर चेंज। ओके, इसके बाद सेकंड हमारा जो है वेर है। अगर मैं लिखता हूं एड्रेस इक्वल टू दिल्ली की जगह मैं लिख देता हूं पंजाब। ओके, और मैं यहां पर एड्रेस को कंसोल करवा देता हूं। ओके, और मैं इसको सेव करता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर अब पंजाब लिखा आ रहा है। Why it is showing Punjab? Because we will change the variable of the address. Okay, so यहाँ पर एड्रेस पहले दिल्ली था, अब क्या है, पंजाब है। ओके, सो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, सो वी कैन राइट हियर इट कैन बी चेंज। ओके, इसके बाद थर्ड हमारा आता है नेम। चलो अब नेम को हम चेंज करते हैं, दिशांत को हम लिखते हैं GFG। ओके, सो अब नेम को प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पर अगर हम नेम को प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो हमारे पास GFG आया। ठीक है, क्लियर करते हैं, एक बार दोबारा रीलोड करते हैं, यस वी हैव GFG। ओके, मतलब नेम भी चेंज हो सकता है, इट ऑल्सो कैन बी चेंज। ओके, सो वाई वी आर यूजिंग वेर एंड वाई वी आर यूजिंग लेट। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम लेट यूज करते हैं, क्यों हम वेर यूज करते हैं। सो इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप वेर यूज कर रहे हैं तो वेर का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है और लेट का जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। तो लोकल और ग्लोबल स्कोप समझने के लिए पहले आपको कोड ब्लॉक को समझना पड़ेगा कि कोड ब्लॉक क्या होता है। अगर मान लो एक करली ब्रेसेस हमने बनाया और करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी मान लो हमने डिफाइन कर दिया लेट करके, ठीक है, लेट एड्रेस इक्वल टू समथिंग, ठीक है, सपोज वी राइट हियर दिल्ली। ओके, और मैं इस एड्रेस को इस स्कोप के बाहर यूज करने की कोशिश करता हूं, सो आई कैन नॉट यूज दैट इन आउटसाइड द स्कोप। ओके, और उसी की जगह लेट की जगह अगर मैं इधर वेर लिख के और इसको इस स्कोप के बाहर कंसोल करने की कोशिश करता हूं, सपोज एड्रेस। ओके, तो इस कंडीशन में ये एक्सेसिबल होगा, मींस वेर का जो स्कोप होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल ग्लोबल। ओके, एंड द स्कोप ऑफ द let is local। ओके, सो यहां पर हमें पता चल गया कि स्कोप क्या होता है और let और
वेर और कॉन्स्ट कब कब यूज करते हैं। लास्ट बचता है हमारा कंट्री। कंट्री जो है वो ग्लोबल ही हमारा उसका स्कोप होता है, क्योंकि इसके यहाँ पर हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है। दैट मीन्स इट कैन बी एक्सेसिबल ग्लोबली। ओके, सो हम इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये हुआ हमारा लेट कॉन्स्ट वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स और कमेंट्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंपल, लाइक वी आर यूजिंग सिंबल्स फॉर दिस ऑपरेशन। लाइक JavaScript operators are symbols that are used to compute the value or other words. In other words, okay, like if we want to plus, minus, multiply, divide, these are the operators, and these are called arithmetic operators. And second one is assignment operators. We can use equal to, plus equal to, percent equal to. So these are the assignment operators. Okay, and next is JavaScript keywords. Keywords क्या होते हैं? Keywords are some specified words that have some special meaning in JavaScript. Like if we are using any word like where we used where before. If you are using where to creating any variable, like मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ या लेट करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ मैं where इक्वल टू दिशांत। ओके, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि where एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इस नाम से हम वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, तो ये हमारा हो गया कीवर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कमेंट्स। कमेंट्स करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर यूज करा, डबल स्लैश यूज करा जाता है कमेंट करने के लिए, और ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट के केस में वो उस लाइन को स्किप कर देगा, मतलब जावास्क्रिप्ट उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कमेंट हो जाता है। जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया डबल स्लैश लगा के, तो ये पूरी लाइन कमेंट होगी, अब वो इसको एक्सेस नहीं करेगा। अगर मैं फ़ोन नंबर को यहाँ पर कंसोल कराने की कोशिश करूँगा तो देखो क्या आंसर आता है। इफ आई सेव इट एंड गो टू द ब्राउजर एंड चेक, यू कैन सी फोन नंबर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने उसको कमेंट करा हुआ है। अगर हम इसको अनकमेंट कर देते हैं, देन हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। आप बेशक इसको रिफ्रेश दोबारा करके देखते हैं तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट आर द डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इनसाइड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं? जिनके डेटा का कुछ बेसिक टाइप हो। ठीक है, जैसे इंट मीन्स इंटीजर। ओके, फ्लोट मीन्स जो डेसिमल आपके नंबर्स होते हैं, दोज आर फ्लोट। थर्ड वन इज बुलियन इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके, फोर्थ इज कैरेक्टर एंड फिफ्थ इज स्ट्रिंग इज मीन्स ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर। ओके, एंड लास्ट सिक्स्थ इज अनडिफाइंड मीन्स उसको अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है, दिस इज अनडिफाइंड। ओके, सेवंथ वन इज null data types means absence, there's nothing presence here. okay, next जो 8th है, जो इंट्रोड्यूस हुआ था ECMAScript 6 में, ES6 में, वो है आपका सिंबल। ओके, तो ये हमें डेटा टाइप है, हम इस पे बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हम फटाफट अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? लाइक ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। एरेज, जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। फंक्शंस, अभी फंक्शंस हमने पढ़ा नहीं है तो फंक्शंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेट और कस्टम ऑब्जेक्ट्स, दीज आर दी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव में कोई एक्चुअल डेटा नहीं होता, बट प्रिमिटिव आपका एक्चुअल डेटा होता है, बस इतना डिफरेंस आप समझ लेना। ओके, नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं? इट्स सिंपल, you can say JavaScript functions are block of the code. Block of the code means you are writing some block or section of the code to perform some specific task. Suppose आपको मैं थोड़े से ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। ठीक है, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट a इक्वल टू 5। ओके,
और मैंने यहाँ पर लिखा लेट बी इक्वल टू 7। ओके, दो मैंने वेरिएबल बनाए 5 और 7। अब मैं एक और वेरिएबल लाता हूँ, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहां पर मैं सी को क्या करता हूं, कंसोल। सो व्हाट विल बी द आंसर। तो अगर मैं a की वैल्यू 5 रखता हूं और b की वैल्यू 7 रखता हूं और a प्लस बी करता हूं, मतलब हमें c मिलेगा, और c की वैल्यू क्या होगी यहां पर 5 प्लस 7 मीन्स 12। ओके, तो यहां पर हम चेक करते हैं, देखो हमें वैल्यू क्या मिली 12। ओके, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 5, b की वैल्यू क्या थी 7 और c की वैल्यू मिली 12। ओके, अब मुझे एक स्पेसिफिक कोड बनाना है जो इस टास्क को ऑटोमेटिक परफॉर्म कर दे। सपोज हमें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना होता है फंक्शन। ओके, फंक्शंस के बाद आपके फंक्शन का नाम लिखना होता है, सपोज नेम ऑफ द फंक्शन इज ऐड। ओके, फिर इसके बाद आपको दो ब्रैकेट बनाने हैं। ओके, यू कैन राइट एनी नेम ऑफ द फंक्शन, दो ब्रैकेट बनाने हैं। यहां पर आपको आर्गुमेंट्स पास करने हैं, आर्गुमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, और यहां पर हम करली ब्रेसेस बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। ओके, अब यहां पर आर्गुमेंट क्या क्या लेंगे, हम लेंगे a और b। ओके, दो आर्गुमेंट ले लिए a और b, और यहां पर हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं, a प्लस b। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये क्या काम कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड करने का काम कर रहा है, क्योंकि a भी हमारा एक नंबर है, b भी हमारा एक नंबर है, उन दोनों को ऐड करने का काम ये फंक्शन कर रहा है। तो ये कैसे ऐड करेगा, सिंपली वी कैन राइट हियर add inside bracket we are passing a comma b। okay, and here I can store the return value inside another variable like let sum equal to this, and now I am consoling the sum and save it. If you check here we are getting 12. okay, so these are the function and this is the use of the function. okay, so इस पूरी क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। लाइट वेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, सिंगल थ्रेडेड एंड इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट। सो देयर आर टू वेज टू ऐड जावास्क्रिप्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, इंटरनल हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं एंड एक्सटर्नल में अलग से सोर्स डाल के उस स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर देते हैं। थर्ड वन इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वी लर्न अबाउट द लोकल कांस्टेंट एंड ग्लोबल कांस्टेंट, local variables and global variable, sorry, and we also learn how to create variable like var, let, const और without using any keyword. okay, इसके बाद फोर्थ जो आपका है वो हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एंड कमेंट। ऑपरेटर्स हमने पढ़ा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में डीप में, ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर दी रिजर्व्ड वर्ड्स इन द जावास्क्रिप्ट दैट हैज सम स्पेशल मीनिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स हमने पढ़ा था सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल स्लैश, और मल्टीपल लाइन के लिए स्लैश स्टार एंड हैश स्लैश। देखो मैं आपको एक बार मल्टीपल कमेंट करके दिखाता हूँ, स्लैश स्टार और यहाँ पर स्टार स्लैश। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इसको रीड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज डेटा टाइप, जिसमें हमने दो पढ़े, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, दैट हैव सम एक्चुअल डेटा, बट नॉन प्रिमिटिव डजंट हैव एक्चुअल डेटा। ओके, एंड नेक्स्ट वी लर्न अबाउट JavaScript functions, how to create functions. Functions are reusable block of code that perform some specific task. Next is use of the function. We also see how to create function and use function. And in ES6, you can create that function with the help of ES6 syntax add equal to। ओके, यहाँ पर हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, a, b,
and we are returning here a plus b. So these two are same functions, these two are performing same task, but the syntax is different because of this concept comes under ES6. ओके तो ये हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, ये सब हमने पढ़े। बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।